गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे साथ हैं नरेंद्र दहिया सर इज एक्स राजपूत रेजिमेंट एंड नाउ ही इज प्रैक्टिसिंग इन आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल दिल्ली एज एन एडवोकेट। सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टुडे। Good evening, Vipul. Thanks a lot for inviting me over for this talk and giving me an opportunity to talk to our friends from the services. Thanks. तो आप एएफटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं आज ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो प्लीज एक पेन एंड पेपर अपने पास रख लें, बिकॉज जितना हो सकेगा वील ट्राई एंड कवर सम केस लॉज व्हिच हैव बीन सेटल्ड, और वो आपको मदद कर सकते हैं अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे या आपको इस तरह से लगे कि आपको अपने लिए इन केसेस में हेल्प हो सकती है। बट बिफोर आई स्टार्ट सर, एज अ जर्नल पर्सपेक्टिव आप थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कि ये जो आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल की बेंचेस हैं, नाउ हाउ आर दीज बेंचेस ऑर्गेनाइज्ड, व्हाट इज द बेसिक वर्किंग एंड हाउ डू दे रीच अ जजमेंट इन पर्टिकुलर केसेस? Yeah, Vipul, that's a very important question. I think the environment should understand how these benches are organized and what is their modus operandi. How are these benches functioning? You know, recently the President of India was inaugurating a high court, and there she mentioned that the judiciary is only delivering judgments and not delivering justice. So that stands true even for the AFEs. That I explain later. The AFTs basically AF came into existence as per the AFE Act of 2007. People, would you like me to speak in Hindi, English or mixed? सर मिक्स ही रहे, थोड़ा सहज जैसे, मतलब I hope no Jawans are in the meeting. सर मुझे नहीं मालूम है, इट्स एन ओपन टॉक, आप अपना सहज होकर के चलें सर, जैसे मतलब नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। So these AFTs came into existence as per the AFT Act of 2007. This AFTs were established because a lot of service personnel were finding it difficult to seek justice from the courts because they had to approach the high courts, and delivery of justice for the soldiers was becoming very difficult and very costly too. As per the AFT Act, the applicants can either have a lawyer advocate pleading on their behalf, or they can even argue their own case. So some of the officers, in case they feel that they are competent and they know the details of the case, they can even come to the AFT and argue their own case. That is permitted. So the AFTs have a chairman. The chairman is a retired chief justice of a high court or member of a Supreme Court, and he is of the age of 65 years. The members are basically justices from the high courts of various states, and each bench constitutes of a judicial member and an administrative member. The judicial member is a judge, as I told you, member of the high court, and they practice from, they work in the AFT from the age of 60 years to 65 years. And then we have an administrative member who is from the armed forces, and basically they are army command lieutenant generals. At least they are of the rank of major general, and even a DJ can be a member if he has served as a judge advocate general to the services for at least 2 years. So basically a bench constitutes of two people. That's the judicial member and the administrative member. In the court, it is the judicial member which is basically dominating the proceedings, and the administrative member is mostly sitting there and listening to the arguments and can generally gives his opinion once asked for by the judicial member. It is the judicial members which are making all the decisions. Secondly, why I told you about the age is that all the members of these benches are very senior people, and they are quite, you know, advanced in their age, more than 60 years of age. So they are not into, you know, really doing any research or giving any revolutionary judgments. Their judgments are basically based on already decided cases, mostly by the Supreme Courts. And in case of disability claims, the disability element claim law is almost settled,
The Supreme Court has given judgments in almost all the cases. So there's hardly any new point which comes up for discussion. In case a new case comes up, the chairman of the AFT can even have organized a bench having more than 2 members. And in case, then they can decide as a batch application. They, collect all the similar applications and decide it through a bench larger than 2 members. So that is called batch application, and decision is taken on the batch applications. The modus operandi is that applicant writes an application to the AFT bench, which is under Article 14 of the AFT Act. On the first day of hearing, the bench decides whether the application is worth considering or not. They can hear the argument and dismiss the petition at that very application at that very stage, or they can accept it. Once the application is accepted, they issue notice to the respondents. The respondents are basically Union of India, Government of India. Then the respondents are Ministry of Defense, then the Chief of Army Staff, and AG in case of officers, and Record Officer, SRO, senior OIC records in case of the Jawans of the Regimental Center. So on acceptance of the application, the AFT issues notice to the respondents to file a counter affidavit, because they have to hear both sides of the case. So the second respondents, then they file a counter affidavit, which takes around 3 months. The court gives them around 3 months to file the counter affidavit. Most of the time, the MOD is not filing these counter affidavits in time, and they come and request for some more time. So again, 4 weeks are given. A number of times, MOD asks for permission to get more time, and the courts generally give them time. So it takes around, 5 to 6 months for the counter affidavit to be filed by the respondents. Once the counter affidavit is received, then the petitioner is given a chance, applicant or petitioner is given a chance to remark, to file additional plea on the counter affidavit in case he so wants. Most of the time, the advocates, they deny to file any additional appeal, and thereafter they request for the bench to give a date for final hearing of the matter. Thereafter, the court gives a date for final hearing, and in 2-3 hearings, the case is decided either way. So it takes a long time for a case to come to final decision. Most of the disability element claim cases are taking around 1.5 to 2 years for finalization, because the courts have a very long waiting list. Even after getting a judgment in the favor of applicant, the problem still remains. The court gives around 4 weeks for the execution of the judgment. The judgment is sent to the respondents, and they are ordered to implement the judgment. However, the MOD in number of cases is not implementing the case timely, with the plea that they are going to Supreme Court against the judgment or going to the higher courts. Now, earlier it used to be Supreme Court, but now they can go to High Court also against the judgment of AFT. And so the execution gets delayed or is not implemented. Again, the applicant has to go to AFT for execution of the judgment. That again takes time. And again, the AFTs are giving decisions for implementation of the judgment, but that becomes another time-consuming process. Now we have to understand that these AFTs are working under the Ministry of Defense. So they are not very strict with the Ministry of Defense and have not really imposed any kind of penalties on the MOD or the respondents for either late filing of the counter affidavit or non-execution of the judgments. And as I told you, these people are generally old, judges are generally old people. So they are not really much into, creating a lot of ripples. So that one should understand that it is a time-consuming process, and the MOD is not very responsive to the judgments of the AFTs.
That is happening at the central government level also. Even the decisions of Supreme Court are, getting delayed or not getting implemented properly. In case of a lot of land cases, the courts are giving judgments, then the applicant has to again go to the court for execution of the judgment, and again it becomes another case. So these problems that our environment has to understand, that these are very senior people. They have worked throughout their life, and it takes a lot of time for them to create any kind of orders against the MOD which controls them. But the second good part about these judges are both judicial member and administrative member. They are very, helpful to the servicemen, and they want to give favorable judgment to the servicemen, especially in the disability claim cases. So that environment should understand that these people are trying to be helpful, and they are not really towing the line of MOD in that respect. I hope I am clear about the organization of AFTs and how these AFTs are working. मुझे जो इसमें समझ आया वो ये है सर कि सीनियर लीगल luminaries होते हैं जो ऑलरेडी दे कम विद अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ हैविंग dispensed justice and worked in the judicial machinery, in the judicial apparatus, and they are supported by a senior armed forces officer as a technical advisor who helps them exactly in terms of the intricacies of armed forces, technical pieces of a particular case. And justice का पहिया घूमता है, धीमे घूमता है, but ultimately more or less it kind of helps the affected parties or people who are approaching courts. Yeah, you are right. And secondly, the point has to be understood that since they have so many cases, they hardly give a minute or two for discussion of any case. And as I said, they are very senior people, and the case law is almost settled in case of disability. So the mere mention that it is a DM type 2 in peace field is enough for them to decide either way. So it doesn't take much time for them, because they are not listening to new arguments and coming to new decisions. All these things have been discussed a number of times. So it doesn't take much on part of the advocate to discuss the matter. सर, अब मैंने जो थोड़ी बहुत इधर उधर से बातचीत करी, लोगों से रिसर्च करी, उसमें एक केस का बहुत बार जिक्र आता है बार बार। ये कोई धर्मवीर सिंह केस है जो सेटल हुआ, जिसके ऊपर फैसला आया। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है डिसेबिलिटी पेंशन के मामले में? Okay, before I come to Dharamveer case, I'll tell you what kind of people are. I have spoken of the judges. Now we'll talk about the advocates which are practicing in the courts. The advocates are basically of the three types. We have got JAG officers, people who have served in the JAG branch in the Indian Armed Forces. Then we have a number of clerks who have served in the Army, Navy, or Air Force as clerks. These people are practicing in the AFTs. And third, people are the civilians. There are very few serving officers who are not from the JAG branch which are practicing. Now, the JAG branch officers have enough exposure to legal cases while in uniform, and they are well aware about the cases. However, these JAG officers are not very well versed with the decisions that have come about in the Supreme Court, and they generally tend to go along with the policies laid down by the MOD. The civilians which are practicing in the courts, their quality is also very doubtful. Basically, good lawyers are practicing in civil courts. The people who are not able to do well in civil courts are the people who are practicing civilians in the AFTs. Firstly, they are not aware about the service conditions, and secondly, their exposure to the military cases is also less. And we can well understand the caliber of the JCOs which are practicing, or the people from ranks. Some of them have vast experience because they have been practicing for a long time. We have a MLA from AAP also practicing in AFT Delhi. He has got number of cases. So some of them have got enough experience, but you can well imagine the caliber of these advocates and the kind of arguments forth. Now coming to the Dharamveer Singh case. This is a case which is very helpful to the service people for grant of disability element.
It is a case of a signal Jawan. A strange thing which all officers should understand, that Supreme Court has given very judgments which are favorable to the soldiers in case of soldiers cases only. What I'm trying to say is, जब एक जवान सुप्रीम कोर्ट में जाता है या उसकी फैमिली सुप्रीम कोर्ट में जाती है, so chances of that jawan getting a favorable judgment from the Supreme Court are very high, and most of the judgment which are quoted by us in the various AFTs are regarding the jawans and their families. क्योंकि जो कोर्ट्स हैं वो रैंक देख के they are very favorable towards सिपाहीज and towards NCOs. The courts are not giving many favorable decisions in favor of the officers because वो sympathy का फैक्टर जो है उतना वर्क नहीं करता ऑफिसर्स के केसेस में. इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जिसने जजमेंट जो फेवरेबल हैं वो सारे सिपाहीज और एनसीओज के केसेस में. जो ये धर्मवीर सिंह का केस है, ये एक सिग्नल का जवान था. ये 9 साल सर्विस करके he was invalidated out of service on medical ground, given 20% of disability, but the disability was made non-attributable and not aggravated by military service. इस जवान को this boy used to get जनरल सीजर, यानी कि इसको फिट्स आते थे. तो मेडिकल बोर्ड ने इसको जो है नाना कर दिया इसको, क्योंकि सीजर्स को जो है कोई मिलिट्री कंडीशन से सीजर का कोई इम्पैक्ट नहीं. उसके बाद जो है ये जवान ही वेंट टू हिमाचल हाई कोर्ट, जिसमें एक सिंगल जज ने जजमेंट दिया कि इसको डिसेबिलिटी पेंशन दे दी जाए. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसी हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच पे चलेगी. मतलब पहले सिंगल जज ने जजमेंट दिया था, फिर 3 जज की एक बेंच बनी जिसमें अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके अगेंस्ट अपील कर दिया. और अपील करके उन्होंने ये बताया कि ये जो फिट्स हैं ये तो नॉन एट्रीब्यूटेबल और नॉन एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है. और पुराने केसेस को डिस्कस करते हुए गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट का एजी था, उसने ये प्रोजेक्ट किया कि दिस केस इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रांट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन. तो जो डिवीजन बेंच थी हिमाचल हाई कोर्ट की, उसने इस जवान को डिसेबिलिटी पेंशन डिनाई कर दी. फिर ये जवान जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया. सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो है पूरा केस दोबारा डी नोवो पूरा केस जो है स्टडी किया, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये डिसाइड करने के लिए कि इस जवान को डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं, उसमें क्या क्या फैक्टर है. तो जो सबसे पहला फैक्टर है उन्होंने जज किया वो था कि मिनिमम 20% डिसेबिलिटी होनी चाहिए थ्रू दी आरएमबी. सेकेंडली उन्होंने डिसाइड किया अगर कोई भी डिजीज है, डेथ, इंजरी और डिजीज, अगर किसी जवान को सर्विस में रहते हुए हो जाती है तो ये मान लिया जाएगा कि वो डिजीज डेथ जो है वाज कॉज्ड व्हाइल इन सर्विस. कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई जेनेटिक डिजीज है या कोई और डिजीज है, अगर वो एनरोलमेंट के टाइम पे नहीं डिटेक्ट हुई, सो इट विल बी टेकन कि वो डिजीज या वो डिसेबिलिटी सर्विस में हुई है. अगर इस बात को आरएमबी डिनाई करता है तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जो है डिजीज क्यों एनरोलमेंट के टाइम पे डिटेक्ट नहीं हुई. अगर वो जस्टिफाई नहीं करते हैं, जो कि आरएमबी में वो कभी जस्टिफाई नहीं करते हैं, सो वी कैन टेक इट कि कोई भी डिजीज या डिसेबिलिटी है एज पर द कोर्ट दैट इज टेकन एज दैट इज अरोज व्हाइल इन सर्विस. थर्ड पॉइंट जो डिसीजन के लिए आया वो ये था कि कोई डिजीज या डिसेबिलिटी जो है पहले 20% होगी, देन इट अरोज ड्यूरिंग द सर्विस. द थर्ड पार्ट वाज it has to have some causal effect with the military service. कहने का मतलब यह है कि अगर आपने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है और या कोई ऐसा डिजीज है जो मिलिट्री सर्विस से रिलेटेड ही नहीं है, तो भी उस केस में उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दे दी जाएगी. अदरवाइज सब केसेस में डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी. और वो डिसाइड करने के लिए उन्होंने कुछ पैरामीटर्स ले डाउन कर दिए कि कौन सी चीज से हम डिसाइड करेंगे कि ये
डिसेबिलिटी जो है एट्रीब्यूटेबल है या एग्रेवेटेड है या नहीं है। उसके लिए फर्स्ट उन्होंने बोला कि ये एक जो कोई भी डिसीजन होगा वो इट विल बी गिवन, द बेनिफिट ऑफ डाउट विल बी गिवन टू द सोल्जर। अगर कोई भी डाउट है कि एट्रीब्यूटेबल या एग्रेवेटेड है या नहीं है, द बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द सोल्जर। और उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने एक सेंटेंस यूज किया है इस जजमेंट में जिसमें कह दिया है कि इज पॉसिबल बट नॉट लाइकली प्रोबेबल। अगर इस सेंटेंस से वो नहीं मैच करता है तो इन ऑल अदर केस द डिसेबिलिटी विल बी टेकन दैट इट इज एट्रीब्यूटेबल और एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। सेकेंडली उन्होंने बोला प्लेस ऑफ पोस्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग चाहे पीस हो, फील्ड हो, ऑपरेशन हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कोई होनी चाहिए। इट हैज टू हैव सम रिलेशनशिप टू द मिलिट्री सर्विस एंड द बेनिफिट विल बी इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट। ये उन्होंने जो है जजमेंट दे दिया इस केस में। और उन्होंने इस सीजर के केस में, फिट्स आने वाले केस में डिसेबिलिटी ग्रांट कर दी। तो अभी जितने भी हम जो भी डिसेबिलिटी केस फाइल होता है अपनी एएफटीज में, वो सब धर्मवीर पे बेस्ड होता है, सेइंग दैट कोई भी डिसेबिलिटी जो है एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट तो डिटेक्ट ही नहीं हुई। अगर डिटेक्ट होती तो वो ऑब्वियसली एनरोल ही नहीं होता। तो क्योंकि वो उस टाइम पे डिटेक्ट नहीं हुई, सो इट इज टेकन की सारी डिसेबिलिटी या डिजीजेस जो है वाइल इन सर्विस जो है हुई हैं। और अगर नहीं हुई है तो उसके लिए उसको आरएमबी में जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये क्यों उस टाइम पे एनरोलमेंट पे डिटेक्ट नहीं कर पाए। अगर वो नहीं जस्टिफाई करते देन इट इज टेकन कि वो है। एंड ऑल द डिसीजंस जनरली गो इन केस ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द एप्लीकेंट। ये उन्होंने जो ये है पेंशन ग्रांट करने की प्रोविजन गवर्नमेंट की, ये एक वेलफेयर मेजर है विच दे वांट टू ऑल दी सोल्जर्स। सो उसके बाद जो है डिसेबिलिटी पेंशन आफ्टर दिस जजमेंट, धर्मवीर जजमेंट, मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स who retire with a disability getting disability pension. So that's why this Dharamveer case is very important. Decided by Supreme Court, it has been checked by a single judge, a division bench of High Court, and then the Supreme Court. तो वो सारे issues जो है इस जजमेंट में उन्होंने अच्छे से डिस्कस कर दिए। इसी का सेकेंड पोर्शन जो है फिर एक राम अवतार का जजमेंट है। राम अवतार के जजमेंट में क्या है कि बहुत सारी डिजीजेज जैसे ये सीजर है, सम अदर साइकोलॉजिकल डिजीजेज है, इवन डायबिटीज है, इस सब के केस में जो दी एमओडी वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट सेइंग दैट ये जेनेटिक डिजीजेज हैं एंड दीज डिजीजेज हैव नो रिलेशनशिप विद द मिलिट्री सर्विस। लेकिन कोर्ट ने जो है ये एमओडी की ये आर्गुमेंट भी नहीं मानी और इन सब केसों में भी उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट कर दी है। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो डिसेबिलिटी पेंशन का केस लॉ है वो सेटल्ड है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, उन्हीं को कोर्ट करना पड़ता है और उन्हीं के बेसिस पर डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट कर दी जाती है। अभी कोई नई आर्गुमेंट जो है कोर्ट्स में रेयरली पेश होती है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई टॉप क्लास लॉयर की, एडवोकेट की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन हायर एनी एडवोकेट। एक एडवोकेट जनरली डिसेबिलिटी पेंशन में 30 to 40,000 ऑफिसर से चार्ज करते हैं एंड दे आर चार्जिंग लेस मनी फ्रॉम जवान जो कि 20,000 के आसपास उनसे चार्ज करते हैं, 20-30 हजार। और बहुत ज्यादा आर्गुमेंट केसेस में होते नहीं है, सेटल्ड है केस लॉ, इसमें आप जो है केस फाइल कर सकते हैं। सेकेंडली, जब आप वकील कोई अगर हम हायर करते हैं तो उससे आप उसे ओरिजिनल एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन वो फाइल कर रहा है आपके केस में, आस्क फॉर अ कॉपी ऑफ दैट ओरिजिनल एप्लीकेशन सो दैट यू कैन रीड कि वो क्या प्रोजेक्ट कर रहा है कोर्ट में। मोस्ट ऑफ द केसेस जो मेरे पास बाद में आते हैं, ऑफिसर्स डिस्कस करते हैं, वो वकील से कभी मांगते ही नहीं। प्लीज कीप अपडेटेड विद द केस। आप ओरिजिनल एप्लीकेशन की ड्राफ्ट की कॉपी मांगिए, फाइनल ओरिजिनल एप्लीकेशन की कॉपी मांगिए, रीड इट। फिर जो काउंटर एफिडेविट गवर्नमेंट फाइल कर रही है उसको भी पढ़िए। और जो केस लॉज ये वकील जो है ओए में कोट कर रहा है वो केस लॉज भी आप पढ़िए। इन एडिशन आप जो है एएफटी की साइट पे जाकर लेटेस्ट जजमेंट देख सकते हैं और उसमें अगर आपका सिमिलर कोई केस है तो उसको पॉइंट आउट करिए अपने एडवोकेट को कि डिस्कशन के टाइम में, फाइनल डिस्कशन जब होती है फाइनल हियरिंग में,
वो उस केस को भी कोट कर दे, जिससे कि आपको विदाउट ज्यादा आर्गुमेंट के यू गेट द डिसेबिलिटी पेंशन। सर ये तो मुझे समझ गया, फंडामेंटल केस हो गया जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और अब बाकी केसेस इसी पर बिल्ड होते हैं। बट एक जो ये आपने बताया समय लगता है, एमओडी काउंटर एफिडेविट में टाइम लगाता रहता है, फैसला हो जाता है, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हम अपील में जा रहे हैं। सो द पर्सन हु इज देयर हु इज फाइटिंग द केस ही कंटिन्यूज टू लूज सम मनी। तो एरियर्स के लिए भी सर एक कोई तरसेम सिंह केस का जिक्र आता है बार बार। व्हाट इज द तरसेम सिंह केस एंड हाउ मच एरियर्स आर ग्रांटेड इन केस ऑफ सोल्जर इन फॉर डिसेबिलिटी वाला जो है सोल्जर स्ट्रोक ऑफिसर जैसे भी। ये तरसेम सिंह का केस भी जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस एंड रिपोर्टेबल केस। तरसेम सिंह के केस में क्या डिसीजन हुआ कि जो डिसेबिलिटी एलिमेंट या पेंशन या पे, ये तीन चीजों की जो है आपको इंजरी जो है वो कंटिन्यूअस इंजरी है, सेइंग कि एक कोई डिसीजन लिया एमओडी ने या एम्प्लॉयर ने कोई भी डिसीजन लिया, इट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूड रॉन्ग, या इंजरी जो है आपको बार बार होती है। एक रॉन्ग किया मींस ही डिड नॉट ग्रांट यू डिसेबिलिटी पेंशन, वो एक उसने रॉन्ग किया। लेकिन आपको जो इंजरी एवरी मंथ होती है, इन द सेंस कि एवरी मंथ जब भी आपकी पेंशन आती है या पेंशन नहीं आती है, जो आपकी ड्यू होती है, तो आपके साथ कंटिन्यूड रॉन्ग है, मतलब एवरी मंथ यू आर फेसिंग इंजरी बिकॉज ऑफ दैट रॉन्ग डिसीजन। तो ये कंटिन्यूड रॉन्ग का है, इसको ध्यान में करते हुए अगर 50 साल पुराना भी कोई डिसेबिलिटी का या पेंशन का या पे का केस है, यू कैन गो टू द कोर्ट बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूड रॉन्ग एंड कॉज ऑफ एक्शन इज राइजिंग एवरी मंथ। कहने का मतलब यह है कि कोई 6 महीने की लिमिटेशन नहीं है, बाकी सारे केसेस में लिमिटेशन है एएफटी में कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको केस फाइल करना है। लेकिन जो कंटिन्यूड रॉन्ग है और जो इंजरी हर महीने आपको अगर हो रही है, then it is called a continued wrong and you can file a case कभी भी। तो करीब 50 साल पहले भी जो जवान हमारे डिसेबिलिटी आरएमबी में जिनको डिसेबिलिटी ग्रांट हुई थी और उनको कोई भी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं गई मिली थी, वो अब भी कोर्ट में आए 50 साल के बाद और उनको जो है डिसेबिलिटी पेंशन दे दी गई। लेकिन तरसेम सिंह के केस में कोर्ट ने एक और ये डिसीजन दिया कि अब आप 50 साल पुराना केस जो है यू कैन कम टू द कोर्ट विल टेक अ डिसीजन, लेकिन एरियर्स कितने पुराने देंगे। तो तरसेम सिंह के केस में उन्होंने डिसीजन दिया कि जो एरियर हैं दे विल बी गिवन फॉर 3 years ओनली एंड नॉट गोइंग बैक ऑल द वे टू 50 years। तो वो 3 साल तक बेसिकली जो है एरियर्स को रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं अभी कोर्ट्स, अनटिल अनलेस कोई केस है जो कि दूसरे तरीके से डिस्कस किया जाए। पर तरसेम सिंह के बेस पे आपको एक तो आइडिया है कि कंटिन्यूड रॉन्ग क्या है, यू आर गेटिंग इंजरी रेगुलरली एंड यू कैन कम टू कोर्ट एनी टाइम एंड यू विल गेट एरियर्स फॉर 3 years। दैट्स व्हाई दिस तरसेम सिंह जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाह। सो जस्ट फॉर द व्यूअर आई समराइज, सर ने बताया कि तरसेम सिंह के जजमेंट के हिसाब से अगर किसी को आरएमबी में डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया गया था कि वो उसमें कोई डिसेबिलिटी है बट उनको पेंशन नहीं दी गई, और क्योंकि ये उनके साथ में हर महीने गलत होता है, तो देयर इज अ कॉज ऑफ इंजरी व्हिच हैपेंस एवरी मंथ, दे कैन अप्रोच द कोर्ट एट एनी टाइम, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ टाइम फॉर अप्रोचिंग द कोर्ट। लेकिन एरियर जो है वो 3 साल के से ज्यादा का नहीं मिलेगा। बट स्टिल इट्स अ बिग रिलीफ सर, अगर किसी को उस वक्त में नहीं पता था लीगल प्रोसेस क्या है कैसे, तो वो आज भी आकर के अपने लिए 3 साल का एरियर और आगे की जो उनका हक है वो ले सकते हैं। It's a very good judgment in favor of all the, and it is not only for soldiers. This idea of continued wrong is in civil case of civil bureaucrat who had gone to civil clerk था जो कोर्ट में गया था अपनी सैलरी के बारे में, वहां पर उन्होंने डिसीजन दिया है, फिर उसके बेसिस पे तरसेम सिंह फौज वाले का डिसीजन आया। That's why तरसेम सिंह is important for us। अच्छा सर, एक ना ये ब्रॉडबैंडिंग से, ये मैंने कुछ सवाल जो लिखे हुए सर मैं पढ़ रहा हूँ वहां से। अब ये ब्रॉडबैंडिंग होती है कुछ कि 20 से 50% की ब्रॉडबैंडिंग है, फिर 50 से नेक्स्ट है ये, इसमें भी एक केस लॉ डिस्कस हुआ था जो कभी कभी आता है जिसका लोग हवाला देते हैं।
That was General Vijay Oberoi case. Could you share some insights from that case? I hope that the audience is making their notes so that as Daya sir had said, अगर आप चाहें आप अपना केस खुद भी फाइट कर सकते हैं. AFT में प्रोविजन है, you actually don't need an advocate. So these case laws can help you in terms of doing your research and filing your application, etc. So sir, ये what was the General Vijay Oberoi case, sir? If you can throw some light on that. ये ब्रॉडबैंडिंग क्या था कि पे कमीशन ने बोला कि ये जो डिसेबिलिटी जो एलिमेंट है जो हम ग्रांट कर रहे हैं उसमें कहते हैं अप टू 5%, 5 to 10%, 10 to 15%, 15 to 19%, then 20%, 30%, 40%. दैट वे पीपल यूज टू गिव. लेकिन पे कमीशन ने डिसाइड किया कि ये कोई मैथमेटिकल तो है नहीं कि आप डिसाइड कर लें कि ये कितनी डिसेबिलिटी है. एक्यूरेट डिसाइड नहीं कर सकते. तो क्योंकि 20% से कम को तो ग्रांट ही नहीं होती डिसेबिलिटी पेंशन, तो अपने पे कमीशन ने डिसाइड कर दिया कि अप टू 50%, 20% से लेके अप टू 50% तक जो भी डिसेबिलिटी, अप टू 50% मीन्स 49%, तो 20% से 49% तक जो भी डिसेबिलिटी है वो ब्रॉडबैंड कर दी जाएगी और 50% डिसेबिलिटी उसको दे दी जाएगी. जो 50% से 75% तक है उनको 75% डिसेबिलिटी दे दी जाएगी और 75 और बियॉन्ड है उनको 100% डिसेबिलिटी दे दी. ये आर्मी ने एग्री कर लिया, लेकिन जनरल ओबराय जो है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ मतलब पूरी सर्विस करके वो रिटायर हुए और उनका केस में आया कि उन्होंने बोला मेरी भी जो है डिसेबिलिटी इसको ब्रॉडबैंड कर दिया जाए. उससे पहले वो जो है खाली जो मेडिकली इनवैलिड केसेस थे उसके केस में एमओडी जो है ब्रॉडबैंडिंग ग्रांट कर रही थी. लेकिन इस केस के बाद जो है कोई नॉर्मल कोर्स में अपना फुल सर्विस करके भी जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको भी इनवैलिडेटेड मान लिया जाता है मेडिकल ग्राउंड पे और उनको भी ये ब्रॉडबैंडिंग का फायदा दे दिया जाता है. तो कई बार ऑफिसर बोलते हैं कि सर मेरी 3 डिसेबिलिटी हैं. इट डजेंट मैटर. अगर आपकी एक डिसेबिलिटी भी कोर्ट में जनरली डिस्कशन में जो है जो प्लीडिंग कर रहा होता है एडवोकेट फॉर द एप्लीकेंट वो एग्री कर लेता है. अगर एक भी एक्सेप्ट करती है अपोजिंग पार्टी मींस एमओडी अगर एक भी डिसेबिलिटी एग्री करती है और वो 20% से ज्यादा है तो जनरली जो है एडवोकेट सेज दैट आई डोंट वांट टू डिस्कस अदर डिसेबिलिटीज बिकॉज ये ब्रॉडबैंड होकर वो सब 50% पे ही आ जाता है. सो दो डिसेबिलिटी 3 डिसेबिलिटी डजंट मैटर, वो कंपोजिट डिसेबिलिटी कितनी है. इट इज नॉट मैथमेटिकल एडिशन ऑफ ऑल दी 3 डिसेबिलिटीज. वो जो है डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं और आरएमबी में कंपोजिट डिसेबिलिटी देते हैं और उस कंपोजिट डिसेबिलिटी को भी ब्रॉडबैंड करके जो है 50% पे ले जाते हैं, 49% तक जितनी है. और बाकी जैसे मैंने 2 और बैंड बताए. और एक 15 to 19% डिसेबिलिटी केसेस में भी कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिए हैं कि क्योंकि ये मैथमेटिकली बहुत एक्यूरेट साइंस नहीं है और जब डॉक्टर ऑलरेडी ही इज गिविंग 15 to 19%, दैट मींस ही इज नॉट श्योर अबाउट द डिसेबिलिटी. तो 1% की गलती जो है पॉजिटिव साइड में भी हो सकती है. सो दैट 15 to 19% कुड बी 20%. And the courts have given decision in favor of the applicants saying that ये 15 to 19% business is not very accurate. Let's make it 20% and then broadband that 20% to 50%. So इसके बाद जो है ये जनरल ओबराय का जो केस है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि people who retire after completing their service, terms of service, उनको भी जो है ब्रॉडबैंडिंग का फायदा मिलना शुरू हो गया आफ्टर दिस जजमेंट. ओके सर, आपने बताया कि इसी में जो आपने बताया कि 20% से कम में भी पॉसिबिलिटी है. इसका क्या कोई केस लॉ है सर या मतलब हैज देयर बीन एनी एडजुडिकेशन कि 20% से कम में भी कोई डिसेबिलिटी पेंशन किसी को मिली है जिसको बेसिस बना करके देयर इज समवन हु हैज अ एंड आर देयर एनी पेक्युलरिटीज, एनी केस लॉ व्हिच हैज बीन सेटल्ड अराउंड दैट? देयर इज अ केस ऑफ अ जवान. जैसे मैंने बताया ना सारे केसेस जो ये जवानों के ही हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में डिसीजन दिया. ये सुखविंदर सिंह का केस है. सुखविंदर सिंह ये जवान था, ये आर्मी में ये जवान भर्ती हुआ था और इसको ट्रेनिंग के दौरान जो है शायद इसके एनसीओ ने इसके कान पे थप्पड़ मार दी और इसके कान पे थप्पड़ मारने से ये ही वेंट टू हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में इसने जाके ये नहीं बोला कि मेरे को एनसीओ ने थप्पड़ मारा है. ही सेड कि मेरे फ्रेंड ने जो है मेरे को थप्पड़ मारा है
और मेरे कान में प्रॉब्लम, कान में दर्द। डॉक्टर से उन्होंने इसके कान का जो है ट्रीटमेंट किया और बोला कि ही इज नॉट फिट टू सर्व इन दी आर्मी, और उसको 6% डिसेबिलिटी देके और मेडिकली इनवैलिड आउट कर दिया। सो ही वाज मेडिकली बोर्डेड आउट ऑफ सर्विस विद 6% ऑफ डिसेबिलिटी। ही हैड सर्व्ड हार्डली फॉर 1 ईयर, तो उसको जो है कुछ भी नहीं मिला। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये केस बहुत डिस्कस किया और उन्होंने बोला कि ये तो एक आर्मी वालों को या एमओडी को एक अच्छा बहाना मिल गया, किसी को फौज से निकालना है, उसको जो है डिसेबिलिटी दे दो 5-6% और उसको निकाल दो बाहर, थ्रू अ मेडिकल इनवैलिड बोर्ड करके उसको बाहर निकाल दो। आपको कोर्ट मार्शल करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज यू आर पेइंग हिम नथिंग। तो उन्होंने बोला कि आप किसी को फौज से निकाल नहीं सकते अगर उसकी डिसेबिलिटी 20% से कम है। अगर 20% से कम ही है डिसेबिलिटी, देन ऑब्वियसली इज फिट टू सर्व इन द आर्मी। तो आप उसको मेडिकली इनवैलिड आउट नहीं कर सकते हो। और अगर आपने किसी को मेडिकली इनवैलिड आउट कर दिया है तो वी विल टेक इट कि उसकी डिसेबिलिटी एटलीस्ट 20% है, विच विल बी ब्रॉडबैंडेड टू 50% एंड ही विल बी गिवन अ डिसेबिलिटी पेंशन। तो इसलिए ये सुखविंदर सिंह केस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर जवान जो पुराने पहले पेंशन चले गए हैं। उनको कई बार जो है उन्होंने सर्विस एलिमेंट दे दिया जवानों को, डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं दिया है, क्योंकि इनकी डिसेबिलिटी 10-12% बोल के। लेकिन इस केस में कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अगर आप किसी को मेडिकली बोर्ड आउट करते हो तो वी विल टेक इट कि उसकी मिनिमम डिसेबिलिटी 20% है, अदरवाइज ही इज फिट टू सर्व इन दी डिफेंस फोर्सेस। या तो उसको सर्विस कंटिन्यू करिए, और अगर आप उसको निकाल रहे हैं तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन दीजिए। इसलिए ये जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस केस से बैलेंस एस्टेब्लिश किया कि आप कह रहे हैं अगर वो मेडिकली फिट नहीं है तो उसको मेडिकली इनवैलिडेट कीजिए, उसको उसका कॉम्पनसेशन दीजिए अकॉर्डिंगली, और अगर वो मेडिकली फिट है तो फिर उससे काम करवाइए, आप उसको निकाल नहीं सकते हैं बेस्ड ऑन। So it kind of balance the scale in favor of medical fitment of an individual to be able to serve or not serve. Yes, and in case of SS officers, they are sometimes not being granted, extension or not being given permanent commission, saying that they are medically unfit. And then the board is also saying that their disability is less than 20%. So we can quote this Sukhvinder judgment and say that either you continue, make them stay in the service and continue with their service, or you grant them disability pension. So either you cannot have, choice in both the hands. That's what the court ruled in this case. मतलब मापदंड एक ही करना पड़ेगा सर। हाँ जी। ओके सर, अब इससे और थोड़ा सा आगे बढ़े। आपने चूंकि अब ये बताया, एसएस ऑफिसर्स का आपने जिक्र किया, और ये आपने बताया कि 20% से अगर कम है डिसेबिलिटी तो एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दोज पीपल कैन नॉट बी बोर्डेड आउट और आस्क्ड टू लीव। अगर कोई इंडिविजुअल अपना लो मेडिकल कैटेगरी की वजह से इनवैलिडेट होता है या लो मेडिकल कैटेगरी में रिटायर होता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ पेंशनेबल सर्विस बट ऑन कंप्लीशन ऑफ सर्विस टर्म्स एज पर द एंगेजमेंट, तो क्या उनको सर्विस एलिमेंट अलाउड है पेंशन का सर? नॉट द डिसेबिलिटी एलिमेंट बट द सर्विस एलिमेंट। इसमें भी एक कोई केस का समटाइम्स इट इज रेफर्ड सम नानकुट्टन नायर केस, उसका कहीं रिसर्च में आता है सर? ये ऐसा है विपुल, दिस केस इज इम्पोर्टेंट, लेकिन इस पे अभी तक जो है हमारा केस लॉ सेटल नहीं हुआ है। रिसेंटली कुछ जो एएफटीज हैं, एसएस ऑफिसर्स को उन्होंने दोनों चीजें ग्रांट कर दी हैं। डिसेबिलिटी पेंशन मींस उसमें सर्विस एलिमेंट भी ग्रांट कर दिया है और डिसेबिलिटी एलिमेंट भी ग्रांट कर दिया है। लेकिन अभी रिसेंटली जो है एएफटी लखनऊ और एएफटी दिल्ली ने भी कुछ केसेस में खाली एसएस ऑफिसर्स को वो कंप्लीटेड देयर टर्म्स ऑफ सर्विस, उनको खाली डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया है। और इस केस में जो है आई हैव कम टू नो दैट एमओडी इज प्लानिंग टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ एएफटीज where they have granted the officers both the service element as well as the disability element in case of the service officers. What the MOD is saying कि दो चीजें हैं, डिसेबिलिटी एलिमेंट लेने के लिए यू हैव टू बी डिसेबल्ड, और सर्विस एलिमेंट लेने के, सर्विस पेंशन लेने के लिए
you have to complete the terms of service of earning the pension. So in case of a Jawan, 15 years of service, or in case of officers, that is 20 years of service. और अभी जो है ये इस पे जो है आर्गुमेंट्स चल रही हैं, कुछ एएफटी जजमेंट दे रही हैं जिसमें दोनों दे रहे हैं. हाउएवर नानूकोटन नायर के केस में क्या था कि इसने अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस करके रिटायर हुआ था एलएमसी में. ही वाज गिवन डिसेबिलिटी एलिमेंट ओनली एंड नॉट ग्रांटेड द सर्विस एलिमेंट. तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया है कि इसको जो है सर्विस एलिमेंट भी ग्रांट करना. ही विल बी ग्रांटेड डिसेबिलिटी पेंशन which will consist of the disability element as well as the service element. और जो service element है that will be proportionate to the service rendered by him. However, what Army is now contending or MOD is contending, this case is only in case of people who have been invalidated out of service because of medical grounds and not for those who have completed their terms of engagement. तो इस पे जो है एएफटीज अभी दोनों टाइप के जजमेंट दे रही हैं. हाउएवर आवर ऑफिसर शुड कंटिन्यू टू कंटेस्ट बेस्ड ऑन नानूकोटन नायर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. थैंक यू सो मच सर. ऑडियंस कैन मेक अ नोट ऑफ इट. आप चाहें तो गूगल सर्च भी कीजिएगा या इफ यू नो समवन इन एएफटी, वहां पे द केस लॉ व्हिच कर्नल दहिया हैज जस्ट नाउ मेंशन्ड इज नानूकोटन नायर केस, wherein an individual who had completed his terms of service was given a proportionate service element also in the adjudication of the case. Although it has not been fully accepted as established case law, still it is a worthy mention if you are in one of those challenges. Now, before I ask my next question, I would, you can note Colonel Dahiya's number also, as you know, sir is very learned. अगर आपको कोई किसी डिसेबिलिटी पेंशन से रिलेटेड इनसे कोई बातचीत करनी हो, हिज नंबर इज 9756601626. आई रिपीट दैट. ही इज एडवोकेट कर्नल नरेंद्र दहिया. हिज नंबर इज 9756601626. मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, वहां से भी कॉपी कर सकते हैं. मूविंग ऑन सर, ये एक और इसके अंदर कई बार सुनने में आता है कि डिनायल ऑफ सर्जरी या ट्रीटमेंट जो है उसकी वजह से डिसेबिलिटी पेंशन मना कर दिया गया कि मैंने ये कहा जी मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा या मुझे ये ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, तो इसलिए मुझे कहा गया कि क्योंकि आपने वो सर्जरी नहीं करवाई या वो ट्रीटमेंट नहीं लिया, इसलिए आपको अब डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं दिया जाएगा. क्या इसमें भी कोई केस लॉ सेटल्ड है या मतलब इज देयर समथिंग व्हिच कैन बी, और वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग ऑन दोज लाइन? आज ही कहीं कोई एक बात भी कर रहा था in one of our groups जिसके अंदर किसी ने ये बोला कि what if I refuse to take a psychiatric medication because it was just an OPD reference या उस तरह से. So are there any case laws which are settled in this? ये मोस्टली जो है स्पाइन इंजरी में ऑफिसर्स टेंड टू डिनाई सर्जरी. और सेकेंडली जो है ये कुछ ACL टीयर के केसेस होते हैं नी इंजरी में, उसमें भी ऑफिसर्स ने या जवान जो है सर्जरी डिनाई कर देते हैं. इन दोनों में जो है अभी एएफटी की प्रिंसिपल बेंच ने जजमेंट दिए हैं और वो जजमेंट जो है फेवरेबल दिए हैं. फर्स्टली उन्होंने क्या बोला कि जो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है वो इतनी सेटल्ड नहीं है, इन द सेंस कि मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल फर्टर्निटी इज नॉट श्योर कि सर्जरी के बाद ये डिजीज जो है ठीक हो जाएगी और देयर विल बी अ इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन. So they have said कि सर्जिकल प्रोसेस आर नॉट सो फार डेवलप्ड कि उसको जो है आप एक्सेप्ट कर लें कि ये जो है ठीक हो जाएगी. सिमिलरली ACL टीयर के केस में भी कोर्ट ने बोला है कि वो अगर ऑफिसर या जवान ने डिनाई किया है, ये नेवी के 2 केस हैं जिसमें जवानों ने जो डिनाई किया था सर्जरी और उन्होंने RMB ने पहले उनको ग्रांट किया 20% डिसेबिलिटी और दोनों केस में जो है फिर वो 6% कम करके 14% पे लिया है एंड देन दे मेड दैट दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू गेट डिसेबिलिटी पेंशन. तो दोनों केस में जो है कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि दैट इज नॉट राइट और जो है इनको दे हैव टू बी गिवन डिसेबिलिटी पेंशन. सो यू कैन द जजमेंट इज इन केस ऑफ Pramod Yadav, OA 205 of 2019, and the second case is Amrendra Kumar 177 of 2022.
So in two such cases, they have given decision that in case you deny any kind of treatment. The second point is in case you deny surgery. And second point, which Vipul was saying, in case you deny treatment. So other treatment is in case you don't want to take medicine, don't take. How would the doctors come to know that you are not taking medicine? Surgery, obviously, they'll come to know whether you are taking treatment or not. But taking medicines, the doctors will not come to know that you are denied that kind of treatment. However, in case we can produce with some, with some medical papers, in case we can tell the court and convince the court that the whatever treatment was being given was not really 100% in favor of the applicant, then obviously the court will give a judgment in your favor. So you should have good reasons for denying treatment, good medical reasons. So good medical reasons में in spite of individuals denying treatment भी उन्हें रिलीफ मिला है कोर्ट से. सर सवाल तो बहुत है, मैं आखिर के आपसे 2 सवाल पूछूंगा बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि ऑडियंसेस ने भी बहुत सारे हाथ उठा रखे हैं और आज शायद आपसे बहुत समय लोग लेंगे. So sir, क्या war injury pension somehow Pakistan was paid in that operation? Otherwise, so has there been any case laws there also, sir? Yeah, this we should understand. Officers should understand this case. It is a case of Lieutenant Colonel Sunil Dutt Sharma, वो है 54 of 2016. अब ये केस जो है, people should listen carefully. कि this officer Colonel Sharma, he is from Ahmedkor, और पराक्रम चल रहा था. ये अपने गाड़ी में बैठ के आया, अम्यूनिशन लोडिंग अनलोडिंग चल रही थी और ये ही फेल डाउन समवेयर, या तो गाड़ी में उतरते हुए या अम्यूनिशन लोडिंग में हेल्प करते हुए ही फेल डाउन एंड इंजर्ड हिज बैक. तो आर्मी ने उसको जो वो इंजरी रिपोर्ट वाज रेज्ड एंड दी जो डिसेबिलिटी थी दैट वाज मेड एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, 20% disability, and he was given disability pension. This officer went to court saying that I deserve war injury pension क्योंकि ये मेरी जो इंजरी हुई है ये ऑपरेशन में हुई है, डिक्लेयर्ड ऑपरेशन, दैट इज ऑफ पराक्रम. और कोर्ट ने इसकी बात मान ली और इसको वॉर इंजरी पेंशन ग्रांट कर दी है. सो जल्दी हम क्या करते हैं, जैसे ऑप रक्षक चल रहा है या नॉर्थ ईस्ट में ऑप ऑर्किड चल रहा है, ऑप राइनो चल रहा है, उसमें जितने केसेस हैं अगर हमको डिसेबिलिटी पेंशन मिल जाती है, वी आर हैप्पी. Whereas in case you contest your case, you can get war injury pension because ये declared operations में होती है और declared operations are taken as war और उसमें जो है आपको war injury pension मिलती है. However, you will have to contest the case in the court and there are chances that you will get it because Colonel Sharma got it. देखिए कोई ऑपरेशन नहीं था, खाली अम्यूनिशन की लोडिंग अनलोडिंग चल रही थी जिसमें ये ही गॉट इंजर्ड, तो और उसको वॉर इंजरी पेंशन मिली. ऑसम सर, मेरे हिसाब से ये वाली जो आज रिकॉर्डिंग है, ऑल्दो मैं इसको यूट्यूब पर भी डालेंगे. आज जो आपने बातें बताई, अगर जब भी इस वीडियो को लोग देखेंगे आगे भी, दिस विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल इंडिविजुअल्स हु आर सर्विंग द आर्म्ड फोर्सेस. और बाय द नेचर ऑफ सर्विस लॉट ऑफ देम गेट इंजर्ड और बहुत बार उनको वो नहीं मिलता है जो उन्हें मिलना चाहिए. मेरा आखिरी एक क्वेश्चन है सर, और जो मुझे एक इंडिविजुअल ने भेजा विदाउट नेमिंग द पर्सन. शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स के साथ में बहुत बार ऐसा हो रहा है सर कि उनको डिसेबिलिटी पेंशन देने के बाद में ग्रेचुइटी डिनाई हो जाती है, ना टर्मिनल ग्रेचुइटी मिल रही है, ना मतलब कोई पॉलिसी है जिसमें कि आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल ये है कि एसएस ऑफिसर्स विल गेट आइदर दे विल गेट अ पेंशन और दे विल गेट अ ग्रेचुइटी इन ल्यू ऑफ पेंशन. सो अगर एसएस ऑफिसर को सर्विस एलिमेंट अगर ग्रांट हो जाता है तो फिर उसको ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर उसको सर्विस एलिमेंट या पेंशन नहीं ग्रांट होती है, इन दैट केस ही इज ऑथराइज्ड ग्रेचुइटी. दैट्स व्हाट द रूल पोजीशन ऑन दिस सब्जेक्ट इज. You can get either you can get gratuity or you can get pension of service element, not disability element. So in case you are getting only disability element because of your disability, then you will get gratuity also. That is the rule position. ऑलराइट सर, तो मेरे सवाल तो सर लगभग खत्म हो गए. आपने मुझे 1 घंटा, मैं ही आपका 1 घंटा खा चुका हूँ. आज थोड़ा सा मैं सवाल ज्यादा बना के लाया था. नाउ आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग.
gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head